Okay, so please अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर लीजिए सर. We are running late, so it's 3 minutes past 6, sir. लाइव दबाना है अभी. Just give me 1 minute more, eh? Okay, so I think we can start now. Okay, so please share your screen first, sir. I think first better to introduce me and then. You like to introduce me first or you would like me to share the screen? So we are starting the webinar on COVID-19. Hello. Yes. Yes, sir. You can share your screen first, sir. Still, your video will be visible to the audience. The screen is not shared yet. Sir, Which one? Which screen selected. Click on share screen button, sir, at the bottom. Share बस share भी कर दीजिए. It's okay now? Hello? Yeah. Hello, yes, sir. Your screen is shared now. So, okay, so now the moment I say you're live, you can start your presentation, okay? Okay. So this is actually a live webinar with library. We're talking about COVID-19 prevention and treatment. Hello. I have some questions. Yes, Dr. Vivek. Yes. Hello. Yes, you are live, sir. You can start your presentation. Okay, so I'm Professor Dr. Vivek Gupta. Let me show my face first to the audience and then I'll share again. So it's my pleasure to be with you and I am ready to present something related to COVID. I'm Professor Dr. Vivek Gupta, Senior Consultant Cardiologist in Apollo Hospital, New Delhi. To inform, I'm very thankful to Librate that they have given me the space so that I can speak about COVID-19, the pandemic, what's going on, what are the preventions and what are the treatment and what is the cardiology treatment, because I'm a cardiologist. We are facing a lot of issues here. So before wasting much time, I'll go to slide share and then we'll talk more about it when we come back to it. So COVID-19, SARS-CoV-19 virus, this is one of the important pandemic. I mean, the pandemic which has happened, which happens once in a century. I mean, something which never was not expected by any of the world leaders, including Donald Trump. He came to India 24th February. I remember vividly because I was on television on that day. And in fact, the pandemic was declared in March, but there was a caution which was done by WHO before that, and that was 31st January. But nobody expected that this viral disease will become such a problem that the economy, the healthcare, the deaths, the number of people dying, the fear, the phobia, I mean, the whole industry, the whole world, including the presidency of Donald Trump, is now at stake. Is going for a poll.
So I'll talk a little more. I mean, I will keep on talking different ways. So my slides will be different, but I'll speak on. So I also represent Indo-European Course and Revised Collection, and of course I am once again thankful to the library team that they have given. So coming to this pandemic, the global perspective, मैं बीच बीच में हिंदी में बोलूँगा, 2.5 करोड़ आबादी इस समय इन्फेक्ट हो चुकी है, 2.5 करोड़, which is 25 million, and 85 lakhs deaths. जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, which happened in early 19th century, early 20th century, 1928, उस समय भी काफी डेथ्स हुई थी. In fact, if you don't know, even our Mahatma Gandhi, who is the father of Indian nation, was also infected. He was quarantined. So we are now remembering that time. But today, when the world says that we are fully developed, we say we have vaccines, we have treatment, we have ventilators, we have ICUs, we have developed countries like America, Russia, Japan, Western Europe, all these things they are suffering. Coming on to the global perspective, if you see the million-wise, 2 crore population was affected on August 7th. And today is 1st September, it is now 25 million, which is 2.5 crore. Starting from this, if you say, first 1 million came on 2nd April, then 20 million came on August 7th, and then 25 million, which is 2.5 crore, is of 1st September. Coming to Indian perspective, India is not far way behind. Earlier, India was showing that we are not infected, we have BCG vaccine, we are population which is not getting infected. The reason why we were boasting at that time, in fact, I was one of them. I was doing webinars since April. At that time, we were not testing much. Now, once we are testing, which is now almost equivalent to what America has done. Today, as of now, we are testing about 80,000 population per million. If you remember, I remember when I used to talk in early May, we were just testing 5,000 per million. The testing rate was very slow, but there are some fallacies in testing also. Coming to the Indian figure today, 36 lakhs people are infected, a few have recovered, 60% have recovered, and 6.5 lakhs people have died. It's a huge number. Not only the poor people, many rich people, ministers, politicians, doctors, healthcare workers, nurses, they all are infected. This virus is not sparing anybody. 14th August, there were 25 lakhs, and on 1st September, it is 36 lakhs. This is for comparison. 30th July, we were 15 lakhs only. At that time, daily cases were 50,000, and today the daily cases are about 80,000. India first to hit 80,000 cases in a single day. I will share some of the important newspaper cutting also, because that's very important. India first to hit 80,000 cases in a single day, and this has not been done by Brazil, not even by USA, which are the worst affected. India is number 3. If you see, this is the yesterday article, case split at their highest. India 35 lakhs, United States 43 lakhs, Brazil 26. So as such, overall the things are very, very gloomy. But I don't want to depress you through this webinar. I want to tell you how to prevent yourself. The prevention is better. Today morning my father had a fever. In fact, my father has participated in this webinar many times with a lot of people because he is a researcher. So we were very worried. But he's fine now, so that's okay. What I mean to say, anybody can get infected. I'm sitting without mask today because this is my chamber here. So when I go out, I use my mask. So now it is like a coronaphobia. But I want to get you out of this phobia. But of course, that does not mean that you stop preventing. I was talking to the Nigerian friend. They say nobody wears a mask. Nigeria, country which is also affected because they're not testing much. So every country. Today, as of now, America, 62 lakhs and 62 lakhs and this. Okay, coming on to the India posted 2nd million in the first 21 days. So I was trying to tell you a few figures. The first 2nd million came in just 21 days. 2nd million, doubling rate 23 days. Which is much worse than what US, Brazil at the same mark. This is actually a 5 days old figure that it just took 21 days to have a 2nd million. That means 20 lakhs. The million means 20 lakhs. So we are more accustomed to lakh, but the Americans and the Western Europe, they talk million. Where India is yet to improve, we have to improve in testing and we have to improve in the treatment protocol. Vaccine, I'll come to it later, but FDA Commission, this yesterday report, says that willing to fast-track COVID-19 vaccine. Normally, vaccine takes about at least 6 months to 1 year for the coming it to do.
So I will skip few of the slides and then come back to the slides. Recovery rates in India is higher as compared to the countries. India is recovering fast. That means the mortality is less. This is what yesterday figure of mortality was about less than 2%. Overall mortality in the world is about 3.5%. I'll come back to it later. But mortality in 80 years patients are more. What is sero survey? You must have seen sero survey. Sero survey is that you're testing in a population which is a hot spot. The population which is a hot spot, you feel that community transmission शायद हो गया होगा वहाँ पे. Indian government still says that community transmission हमारे इंडिया नहीं हुआ है. Now we are keeping silent. Community transmission means where you don't know the source. यानी कि वैसे आप लोग कह रहे थे ना ट्रैवलिंग होके आइए, बाहर से आए हो या आपने बाहर ट्रैवल किया हो या किसी पेशेंट के साथ आप मिल गए हो तो सोर्स पता होता है. That is why we had an app which was there, Arog Setu app. When the source is not known, this is known as community transmission. So recent highlight in the sero survey, that means whenever they feel that this is a hot spot area, they just test the antibodies. They don't test the RT-PCR, I'll tell you later on. वो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, सबका टेस्ट करते हैं, चाहे इन्फेक्शन हो चाहे ना हो, चाहे फीवर हो चाहे ना हो. दिल्ली में दिखाया गया 23% वर इन्फेक्टेड, मुंबई में 40%. सो दिस इज वेरी हाई फिगर. यानी कि अगर हम आज हमारी आबादी 137 करोड़ की है, 135 करोड़ की, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वी ऑलवेज फील गुड दैट ही इज डूइंग अ गुड जॉब. अगर 135 करोड़ की आबादी है, हमारे 2.5 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हैं एज पर द फिगर्स कमिंग आफ्टर टेस्टिंग. अगर हम सीरो सर्वे करते हैं तो 23% दिल्ली में इन्फेक्टेड है. Of course, that is hotspot area. But that means there is a big gap between the testing and number of people are actually infected. This is what I will tell you. अभी herd immunity की मैं बात करूँगा कि herd immunity क्या होता है. अब क्या हो रहा है हमारे इसके चक्कर में, today morning I lost one of my I want to give you some examples. I mean, one of my patient whom I had done angioplasty about 5 years back. And I had put an AICD, which is automatic implantable cardiac defibrillator. We were doing video consultation. अब video consultation से वो बात नहीं आ पाती, तो I did video consultation day before yesterday and requesting him to get hospitalized. He was falling, he had left ventricular functions are poor, heart की pumping कमजोर है, लेकिन उनका बेटा insist कर रहा था कि हम, they were very rich people, कि हम कोरोना की वजह से हम नहीं आ पाएंगे, अब अस्पताल में बड़ा डर लगता है, घर पे दवा कर दीजिए. And in the morning he passed away. I very felt bad. Similarly, why this is happening? Because people and patients are fearing to go to hospital even for the regular treatment. So this is the data we have shown. 60% fall in major and minor operations. This is what is happening. Acute cardiac emergency, जो हमारा तो change is -51%. यानी कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा होता है, वो सोचता है हम दवा से इलाज चलाएं, कौन कोरोना टेस्ट करे, क्या कराएंगे, अस्पताल जाएंगे. I wanted to assure you through this webinar that at least Apollo Hospital type of hospital, I am working in Apollo, so I can tell you Apollo is a totally COVID safe hospital. So don't take chances in your health. Our COVID area is separate, completely separate. हमारा non-COVID area completely separate है. And जो एम्बुलेंस आती है वो एम्बुलेंस भी अलग है हमारे यहाँ. जो एम्बुलेंस कोविड पेशेंट को ला रही है उसको भी फुल्ली उसको डिसैनिटाइज कर दिया जाता है, लेकिन जो नॉन कोविड पेशेंट भी अलग एम्बुलेंस है. दिस व्हाट आई वांट टू अश्योर यू that please don't take chances. If you are having chest pain or angina or heart attack, please go to hospital, or influenza or anything else. 78% COVID patients develop heart conditions. अब this is why this is happening. अभी तक हम लोग सोचते थे खांसी जुकाम बुखार, कोई वायरस डिजीज होती है वो खांसी जुकाम बुखार होता है, तो अभी तक हम ये सोच रहे थे खांसी जुकाम बुखार है ये. तो खांसी जुकाम बुखार के हिसाब से तो इसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स की जो कोविड टीम है, दे आर एक्चुअली रेस्पिरेटरी, जो हमारे फेफड़े या लंग के डॉक्टर हैं वही कोविड टीम है. लेकिन शुरू में मैंने जब एक वेबिनार किया इटली के साथ में, दैट वाज फर्स्ट वीक ऑफ मे, मोस्ट ऑफ द डेथ विच आर हैपनिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ लंग डिजीज, बिकॉज ऑफ द कार्डियक कंडीशन, मायोकार्डाइटिस, हार्ट अटैक एंड फेलियर. आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. बाय एग्जाम्पल वी लर्न, वी ऑल आर लर्निंग. आई हैड ए पेशेंट ऑफ कोविड who was hospitalized about 3 weeks back in a non-COVID ward. उसका रीजन था उनको फीवर करके आए थे, लेकिन RT-PCR टेस्ट was negative. Please learn, this is very learning. जब RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होता है तो हम लोग सोचते हैं इसको कोविड नहीं है, इसको बुखार किसी और वजह से है. हमने उसका CT स्कैन कराया. CT स्कैन में क्लासिकल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आया, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस. अब लेकिन फिर हमने RT-PCR एक और रिपीट करा दिया अपोलो में, पहला कराया कहीं और, दूसरा अपोलो में.
वो भी नेगेटिव, मीन्स कोविड नहीं है। हमने उसको भर्ती कर लिया नॉन कोविड वार्ड में। देन उसकी फैमिली में 2 लोग थे, उनको इन्फेक्शन हुआ, उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, यानी कि फैमिली इन्फेक्ट हो रही है और ये पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं है। मेरे दिमाग में कंफ्यूजन घूम रहा था। हमने एंटीबॉडी टेस्ट कराई, एंटीबॉडी टेस्ट वाज आल्सो नॉर्मल, बट एंटीबॉडी नॉर्मल होना स्वाभाविक है क्योंकि एंटीबॉडी बनती है 2-3 हफ्ते बाद। चलिए फिर हम एक दिन राउंड पे गए, हमने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेट अस डू थर्ड आरटीपीसीआर टेस्ट। थर्ड आरटीपीसीआर वाज पॉजिटिव। वी शिफ्टेड रैपिडली आवर टीम बिकॉज अपोलो के जो वो फ्लोर था इट वाज क्वारंटाइंड एंड वी डिड ऑल द एंटी इन्फेक्शन मेजरमेंट। उसको शिफ्ट कर दिया कोविड वार्ड में, डिस्चार्ज कर दिया। 12 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया। उसकी एंजियोग्राफी पेंडिंग थी, उसको कोई खास चेस्ट पेन नहीं था। एंड डे बिफोर यस्टरडे इवनिंग एट 9 PM शी डेवलप्ड कंडीशन विच वाज लाइक गैस। मुझे रात को फोन नहीं किया, लगा नहीं। दूसरे दिन शी केम टू हॉस्पिटल एज ए ब्रॉड डेड। वेरी सैड। अब क्या है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज जिसमें कोविड में नॉट ओनली लंग्स आर इन्फेक्टेड बट देयर इज ए प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशन, खून गाढ़ा हो जाता है। इस पेशेंट को हमने सारी दवाई दे रखी थी खून पतला करने की, उसके बावजूद भी शी हैड एन हार्ट अटैक एंड व्हेन टिल द टाइम शी रीच्ड, रात भर उन्होंने खराब कर दिया। गैस बन रही है, डाइजीन। काफ़ी पेशेंट हार्ट अटैक के होते हैं, उनको गैस के सिम्टम होते हैं, तो प्लीज डू नॉट टेक चांसेस। अगर गैस बन रही है, डाइजीन इज नॉट इनफ, पेंटोसिड इज नॉट इनफ, आपको ईसीजी करा लेना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम when we lost this patient, मेरा दिमाग इतना मूड खराब हो गया कि I really felt bad, but there was no solution. अब मैं दिखाना चाहता हूँ कार्डियक कंडीशन कैसे हम लोग कर रहे हैं, आजकल एंजियोग्राफी कैसे कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग जो है जब एंजियोग्राफी करते थे तो एंजियोग्राफी बिकॉज इट इज ए नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में तो मास्क भी नहीं पहनता था। देयर वाज नो नीड टू वेयर द मास्क। लॉट ऑफ पीपल दे वेयर द मास्क। अब आप देखिए मास्क ऊपर शील्ड, फेस शील्ड, द हेड कवर, ये सब कर रहे हैं। Our hospital started treating corona from the beginning. This is Apollo Hospital and we have about 300 beds which are reserved and we are very good, doing good, and our mortality is much less. I can tell you COVID mortality is much less than other hospitals. This is, we have to get the data. तो ठीक है, पुरानी बात है, एंजियोग्राफी की ये बात है। डॉक्टर्स, कमिंग ऑन टू डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर, ये पुराना डेटा हो गया जुलाई 27 का। अगस्त का डेटा हमारे पास आया था, एंड ऑफ अगस्त। आई कुड नॉट मेक द स्लाइड, डजंट मैटर, ज़्यादा फर्क नहीं। IMA का डेटा आया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। दैट नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव वाज 1500 दैट टाइम इन जुलाई 27। व्हाई आई वांट टू हाईलाइट दिस पिक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आउट ऑफ दोज डॉक्टर्स हु डाइड वर 126, यानी कि 126 डॉक्टर दे डाइड, इंडिया की बता रहा हूं मैं, आउट ऑफ 1500। So mortality is about 8%. Why doctors are dying more? It's something which is intriguing. There is something wrong. डॉक्टर पे डेटा मिस नहीं हो सकता कि डॉक्टर की डेथ हुई है कोविड से हुई है, डेटा मिस नहीं हो सकता। अगर हमारी वर्ल्ड फिगर 3% कह रहा है, आर वी मिसिंग द डेथ्स? आर वी नॉट एबल टू डायग्नोज द डेथ जो हो रही है उसका RT-PCR टेस्ट ही नहीं हुआ? लेकिन चूंकि डॉक्टर का डेटा है, आई डोंट थिंक दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू बिलीव दिस। व्हाट आई मीन टू से, द मोर्टेलिटी इज हाई, you have to take precautions. What is actually COVID-19? वायरस डिजीज है, सिंपल वायरस नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वायरस है। वायरस डिजीज में पहले एंटीजन बनता है, फिर सेलुलर इम्यूनिटी होती है, फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। मैं थोड़ा सा इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ बिकॉज a lot of doctors how they are working. कोरोना वायरस S protein has been reported as significant determinant of virus entry into host cells. The enveloped spike glycoprotein binds to cellular receptor ACE inhibitor 2 for SARS-CoV-2 and the entry of SARS-CoV into cells was initially identified to be accomplished by direct membrane. I come to direct slide. किस तरह की immunity होती है? Humoral and cellular immunity they are having. The SARS-specific IgM antibodies disappear at the end of 12. Then there is IgG antibody which lasts for a longer time. तो ये दो जब हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, we test the IgG antibody, not the IgM, because IgM is a short-lasting antibody. Cytokine storm is something which I want to tell you that whenever the patient dies of lung disease, the patient has acute respiratory distress syndrome. मैं एक्सरे कुछ दिखाऊंगा आपको बाद में कैसा होता है। और cytokine storm में we have a treatment now by the name of ticlozumab. एक दवा होती है जो कि फायदा करती है patient, we can save the patients now today. क्लिनिकल डायग्नोसिस अभी तक जो बनती थी वो ठीक पुराना स्लाइड है थोड़ा सा, वो बनती थी
Signs of symptoms were including cough, fever and dyspnea and pneumonia. थोड़ा चेंज आया है, मैं इसमें थोड़ा स्लाइड में नहीं लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस। दो तरह के पेशेंट्स हैं, इसी तरह दो तरह के पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट होते हैं जिसको कफ होता है, फीवर होता है और जुकाम हल्का सा होता है, खांसी आती है, इसका मतलब है कि उसके लंग में डिजीज हो रही है। दूसरे तरह के पेशेंट होते हैं जिसको डायरिया होता है, यानी कि हल्का डायरिया हुआ, हल्का बुखार हुआ, उनकी लेकिन उसके अंदर वो सेफ कोविड है, दैट मींस उसमें चांसेस ऑफ रिस्क इज मच लेस। अब डायग्नोसिस कैसे बनती है वो हम बताएंगे आपको। डायग्नोसिस इज बेसिकली बाय RT-PCR टेस्ट, जो कि एक टेस्ट है, आप सबको पता है कैसे किया जाता है। नाक के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को सिग्नेशन लेते हैं और 24 घंटे लगते हैं कम से कम इसकी रिपोर्ट आने में। बट दिस इज हाई सेंसिटिविटी बट लो स्पेसिफिसिटी, यानी कि सेंसिटिविटी हाई है, इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव आ गया तो 100% पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है, यू हैव टू रिपीट इट अगेन। दूसरे टेस्ट आया रैपिड एंटीजन टेस्टिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द साउथ कोरियन किट। व्हाट इज रैपिड एंटीजन टेस्टिंग? जो गवर्नमेंट करा रही है अपनी दिल्ली गवर्नमेंट में, 30% टेस्ट तो RT-PCR होते हैं, जो कि कंफर्मेटरी, काफी कंफर्मेटरी माना जाता है। लेकिन आपको मैंने केस दिखाया, इवन RT-PCR टेस्ट वाज नेगेटिव 3 टाइम्स एंड 4th टाइम इट वाज पॉजिटिव, क्योंकि पेशेंट को सफर कर रहा था, पेशेंट वाज एक्चुअली हैविंग कोविड। लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की और भी दिक्कत ज्यादा है। इसकी टेस्टिंग जो है, रिजल्ट तो 30 मिनट में आ जाता है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी केवल 30% है, यानी कि अगर किसी का कोविड-19 पेशेंट है, बुखार चल रहा है और टेस्ट नेगेटिव आया तो हम लोग लिख के देते हैं, गवर्नमेंट लिख के देती है, प्लीज कंफर्म बाय RT-PCR टेस्ट। कहने मतलब है कि इस टेस्ट की सेंसिटिविटी इतनी पुअर है, अगर हम 60% लोगों को भारत में इस टेस्ट से हम टेस्ट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है हम कम से कम 70% लोगों को मिस कर रहे हैं। वी आर मिसिंग, यानी कि हमारा डेटा अगर आज कह रहे हैं कि 80,000 है, एक्चुअली हो सकता है 1 लाख होता अगर हम सारे RT-PCR करते। लेकिन इसमें नथिंग, नोबडी टू ब्लेम। अब प्रॉब्लम क्या है, RT-PCR टेस्ट की रिपोर्टिंग जो है वो आती है 24 घंटे में। हमारे अस्पताल में हम लोग 8 घंटे में दे सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि 24 घंटे लग ही जाते हैं। गवर्नमेंट में तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में it takes at least 2 days for the test to come. So we have to depend upon something which is faster, but of course there is a limitation. So coming on to the radiological diagnosis, ये दिखाना चाहता हूँ आपको CT scan। अगर किसी को बुखार चल रहा है, somebody is having fever and your test is negative, but still you feel that इसको कोरोना है, do the CT scan. HRCT scan is highly sensitive and specific. अगर उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आ गया, इसका मतलब है जैसे कि हमारे केस में था, मैंने कहा CT टेस्ट में ग्राउंड ग्लास आ रहा है, RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, वी हैव टू चेक इट अगेन एंड अगेन बाय RT-PCR टेस्ट। तो कहने मतलब ये है, तो टेस्टिंग इज की टू सक्सेस। वी आर टेस्टिंग नाउ वेरी हाई, हमारे यहाँ टेस्टिंग अच्छी हो रही है इंडिया में, अबाउट 80,000 per million, which is touching about 1 lakh per million, and we are testing high, but we have a big population. It's not easy to control. अभी इंडिया और अमेरिका में फर्क क्या है? अमेरिका is having population of 22 crore, which is equivalent to about उत्तर प्रदेश. India is population of 135 crore people, which is every third person in the world is Indian, and every second person in the world is either Indian or Chinese. अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए काफ़ी किट की ज़रूरत है, काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, बट I still congratulate our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, and his team, including the Ministry of Health and Family Welfare, कि जिस हिसाब से इन्होंने टेस्टिंग बढ़ाई है और जिस हिसाब से कंटेनमेंट किया, लॉकडाउन किया 24 मार्च को, उसके बाद अनलॉकडाउन करना पड़ा, इकोनॉमी इश्यूज थे, दिस वाज नॉट इजी। तो आई थिंक वी आर स्टिल डूइंग वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अभी हाई कोर्ट ने कहा रैंप अप टेस्टिंग दैट शोज एक्यूरेट रिजल्ट्स, बिकॉज अब रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जिसमें मैंने कहा था कि जिसकी सेंसिटिविटी पुअर है, उन्होंने कहा कि आप सारे टेस्ट कम से कम RT-PCR करिए। अब RT-PCR टेस्ट करके रिजल्ट आता है 24 घंटे में, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। बट ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड इन द हाई कोर्ट, एंड व्हेन दे सेड a certain accuracy of rapid antigen test, government also says to ICMR, एक लेटर आया गवर्नमेंट दिया ICMR को, भाई आपको टेस्टिंग एक्यूरेसी रखनी है, यानी कि डोंट डू रैपिड एंटीजन मच, डू RT-PCR मोर। वो हो नहीं पा रहा अलग बात है, बट गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट। फाइनली डिसीजन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का होता है कि कहाँ रैपिड एंटीजन टेस्टिंग होनी है, कहाँ RT-PCR होनी है। डेली टेस्ट इंचेस क्लोजर टू 1 मिलियन मार्क, एक दिन में हम लोग 10-10 लाख केसेस कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, डेली टेस्ट इंच क्लोजर टू टारगेटेड 1 मिलियन, यानी कि हम लोग टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। मैं बता रहा था मई में हम लोग जब टेस्ट कर रहे थे, हमारे 8,000 टेस्टिंग हो रहे थे पर मिलियन,
मई में, जून में थोड़े बढ़ गए। उस समय इटली कर रहा था 80,000 टेस्ट पर मिलियन, अमेरिका कर रहा था 1,40,000 टेस्ट पर मिलियन, और हम लोग कर रहे थे 8,000 टेस्ट पर मिलियन। तभी तो हम लोग कह रहे थे हमारे केसेस ही नहीं है। एक्चुअली केसेस तब भी थे, टेस्ट हमारे कम थे, बट ऑफ कोर्स आवर कंट्री इज नॉट डेवलप्ड, इज डेवलपिंग कंट्री, वी हैव टू हैव शॉर्टफॉल्स, वी हैव डिफरेंट लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज। अभी हमारे कमियां हैं, हेल्थ केयर सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम इतना बढ़िया डेवलप नहीं हुआ है जितना कि डेवलप कंट्री का है। लेकिन डिस्पाइट टेस्टिंग इटली was the worst affected and America is the worst affected as far as mortality goes. हमारा mortality rate कम है, that is a very good thing, but I have doubts because जब डॉक्टर्स की mortality 8% है, जैसा कि डेटा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है, there is some data mismatch, तो we have to really work again to find out the actual data. जो डेटा आता है वही हम आपको दिखा रहे हैं. I am not the statistician, but what I mean to say कि ये बीमारी खतरनाक है. 80,000 टेस्ट पर मिलियन कर रहे हैं. दिस इज रैपिड एंटीजन डोज. एक टेस्टिंग होती है वायरल लोड जो हो नहीं पा रही है. इसे वायरल लोड का मतलब होता है कि हम वायरल लोड चेक कर लें किसी पेशेंट का. देन आई एम स्पीकिंग इन हिंदी इन इंग्लिश बोथ बिकॉज आई हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल इज गोइंग फेसबुक लाइव ऑल्सो, सो लॉट ऑफ पीपल आर हु आर एक्चुअली नॉन मेडिकल. तो वायरल लोड एक ऐसी चीज होती है जिससे पता लगता है कि ये पेशेंट कितना लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है. इन्फेक्टिविटी नॉर्मली कहते हैं, अभी शुरू में ICMR ने कहा था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, वन पेशेंट कैन इन्फेक्ट 450 पीपल, वेरी हाई इन्फेक्टिविटी. तो मीनिंग दोस पीपल विद एन एवरेज ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू 6.25 अगर हाई वायरल लोड है. अब कमिंग ऑन टू द CT वैल्यू, मेडिसिन कैसे काम करती है, दवाइयाँ. आज की तारीख में 1 सितंबर हो गया है, नवंबर से ये बीमारी शुरू हुई थी, अभी तक रामबाण नहीं आया है. देखिए राम मंदिर को उद्घाटन कर दिया. 5 अगस्त वॉज ए लैंडमार्क डे. मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें भी करता रहूंगा बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स ऑल्सो. 5 अगस्त वॉज द लैंडमार्क डे व्हेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिड द शिलान्यास ऑफ राम जन्मभूमि. लेकिन अभी तक इस बीमारी का रामबाण नहीं. रामबाण मतलब अचूक बाण. राम का बाण मतलब अचूक बाण, यानी कि आपने दवा खिलाई और पेशेंट ठीक हो गया. इसका नहीं आया है डिस्पाइट सो मच ऑफ रिसर्चेस. अब क्या है, कहाँ कैसे काम करती है कुछ ये. दिस इज द वायरस व्हिच गोज इनटू द सेल्स, प्रोड्यूसेस RNA, पॉलीपेप्टाइड, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, RNA डिपेंडेंट. जो रेमडेसिविर नाम की दवा है अभी बताऊंगा, जो कि एंटीवायरल है, वो काम करती है सेल के अंदर. कुछ दवाइयां होती है जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो काम करती है एंट्री में, जब एंट्री होती है सार्स कोविड वायरस की इनसाइड द सेल, उसको इनहिबिट करती है. और टोक्लिजुमैब काम करती है जो कि साइटोटॉक्सिक स्टॉर्म होता है उस पर काम करती है. तो दिस इज जस्ट टू टेल यू. अब दवाई कौन कौन सी अवेलेबल है. हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसमें काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया फायदा करेगी नहीं करेगी, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसका फायदा क्या है. दूसरी आइवरमेक्टिन, जो कि एक्चुअली एंटी प्रोटोजोअल यानी कि पेट में केचुए होते हैं ना जो, उसके लिए दवा इस्तेमाल होती है, उसमें एंटीवायरल एक्टिविटी पता लगी. तीसरी दवाइयाँ जो वायरस पे डायरेक्ट एक्ट करती है, रेमडेसिविर, फेविपिराविर और टोक्लिजुमैब जो कि IL-6 इनहिबिटर है, और दूसरी कोल्चिसिन. तो नंबर 1 और नंबर 2 दवाइयाँ तो माइल्ड डिजीज में इस्तेमाल होती है, और जब सीरियस डिजीज होती है तो हम रेमडेसिविर और फेविपिराविर इस्तेमाल करते हैं. ये ओरल है, ये इंट्रावीनस है. अब वन बाय वन कमिंग टू हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. आई थिंक वी हैव इनफ टाइम. आई हैव टू टेल यू व्हाट इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. इट इज द ब्रदर ऑफ क्लोरोक्विन, मतलब है कंपाउंड वही लेकिन लेस टॉक्सिक. अभी 2 तरीके से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल होना चाहिए. पहला होता है प्रिवेंशन का. कुछ दवाई को प्रिवेंशन मतलब प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर हम आज खा रहे दवा, तो हमको अगर एक सार्स पेशेंट, कोविड पेशेंट हमारे बगल से गुजर गया तो हमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. समथिंग लाइक वैक्सीन तो आई नहीं, वैक्सीन बारे में बताऊंगा आपको. तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सबसे पहले हम लोग ने इंडिया, ये हमारे यहाँ कहा गया, दिस इज ICMR गाइडलाइन जो 24 आई थिंक इट केम ऑन 28 मार्च, आई डोंट रिमेंबर, एंड देन दिस फॉलोअप केम इन मई. कि सारे हेल्थ केयर वर्कर को इसको बड़ा करके अगर हम दिखाएंगे स्क्रीन में, लेकिन वो बड़ा करके देखने से फायदा नहीं है, मैं बोल देता हूँ कि सारे हेल्थ केयर वर्कर को ये दवा खानी चाहिए 400 मिलीग्राम सुबह शाम और 400 मिलीग्राम वंस अ वीक फॉर 8 वीक्स. 7 वीक्स कहा गया था. अब 7 वीक्स लिए कहा गया था, किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना लंबी बीमारी चलेगी. फिर इसका फॉलोअप आया मई में. उन्होंने कहा केवल हेल्थ केयर वर्कर को नहीं, बाकी जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी खाना चाहिए. मैं उस समय कह रहा था, हमारे कई दोस्त हैं पुलिस वाले, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम द पुलिस सर्किल बिकॉज दे आर कमिंग इनटू दे आर मीटिंग लॉट ऑफ पीपल. I said you take mask but take hydroxychloroquine also. I started taking it. पर ये confusion हो गया कि भैया इससे एरिथमिया होता है, डेथ हो जाती है लोगों की. बड़ा confusion हुआ. तो I still go with my word. Who are the French doctor who actually said कि ये फायदेमंद है?
अब यहाँ पे अब आ गए प्रिवेंशन से ट्रीटमेंट में, यानी कि जो पेशेंट को कोविड हो गया उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फायदा करेगी कि नहीं करेगी. दिस वाज फरवरी 20. ये डीजे रॉल्ट है, वन ऑफ द टॉप वायरोलॉजिस्ट ऑफ फ्रांस. इसने स्टडी पोस्ट करी अप्रैल 9 को और 1000 पेशेंट में स्टडी किया. उन्होंने कहा कि हमने जिन पेशेंट को कोविड हो गया हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी एंड एजिथ्रोमाइसिन दी एंड वी फाउंड 91% सक्सेस, वेरी ह्यूज सक्सेस. दिस वाज अप्रैल. इसी को देखते हुए साथ साथ उस समय इफ यू रिमेंबर मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही रिक्वेस्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी कि इसको एक्सपोर्ट करिए. हमने उस समय एक्सपोर्ट बैन कर दिया था. बैन इसलिए कर दिया था कि हमको जरूरत पड़ेगी, जब हमको दवाई हमको जरूरत पड़ रही है हम दूसरों को कैसे एक्सपोर्ट करें. लेकिन फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि विल एक्सपोर्ट इट. उसके बाद कुछ अमेरिका में स्टडी हुई जिन्होंने इसको कंफ्यूजन डाल दिया. अमेरिका में स्टडी हुई, उन्होंने कहा कि हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी एंड द पेशेंट मोर्टेलिटी वेंट अप. एक्चुअली दैट स्टडी वाज फर्दर, अभी बेल्जियम की स्टडी जिसका डेटा मेरे पास यहाँ नहीं लिखा हुआ है, द बेल्जियन स्टडी हैज कंफर्म दैट इफ यू गिव इट जुडिशली, दैट मींस अगर पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट का QTC इंटरवल नॉर्मल है ECG में, तो आपको दवा देनी है. एंड अभी कुछ हॉस्पिटल दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं. अब डिस्कशन में आ गया ICMR की कोई क्लियर कट गाइडलाइन प्रिवेंशन के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है. तो आई एम नाउ लीविंग दिस टॉपिक. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एटलीस्ट उसको प्रिवेंशन के लिए खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही राइडर है. ECG करा लीजिए. इफ द ECG शोज नॉर्मल QT इंटरवल, नॉर्मल QTC इंटरवल, तो आप खाइए. मैं खा रहा हूँ और डॉक्टर्स भी खा रहे हैं. इट इज हैविंग सम एंटीवायरल एक्टिविटी एंड देयरफॉर अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो आपको बढ़ेगा नहीं. दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस. अब व्हाट इज रीपर्पस मेडिसिन? मैंने बताया था जो दवाइयाँ जैसे कि एमीबाइसिस के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी कि पेट के केचुए के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसको हम ट्राई करें तो क्या फायदा हो. माय फादर, यू कैन सी माय figure here, he is a pharmacologist, he has more than 150 publications, he has given a protocol and this is under consideration for the trial. ये एक ऐसी दवा है जो कि फायदा करेगी और वो ट्रायल होने वाला है और उस ट्रायल के बाद हम आइवरमेक्टिन, अभी उत्तर प्रदेश में ये दवा जो है they have started giving as preventive. This ivermectin is already proven antiviral drug which has got a 5000 fold reduction in viral RNA. ये इन विट्रो मतलब लैब में टेस्ट किया है कोविड-19 में. इस टेस्ट को दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव. तो अभी हम लोग इसको भी दे रहे हैं 12 मिलीग्राम पर डे कोविड पेशेंट में. रेमडेसिविर नाम की एक दवा है विच वाज अप्रूव बाय FDA. फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द बॉडी विच कंट्रोल्स अमेरिका. जब FDA अप्रूव हो जाता है तभी वो दवा किसी को दी जा सकती है. तो इट वाज अप्रूव्ड बाय FDA इन मई और जून, बट हमारे अवेलेबिलिटी थोड़ा लेट आई. अब हमारे फ्रीली अवेलेबल है. इंट्रावीनस मेडिसिन है जिसमें देखा गया है कि जो पेशेंट कोविड के सीरियस हो जाते हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसमें दी जाती है, फायदा होता है. एक और दवा है फेविपिरापिरा. तो सुना होगा व्हाट्सएप मैसेज आए थे कि नई दवा आ गई, ब्राह्मण आ गया, ये है वो है. इसका क्या है? दिस इज अगेन एंटीवायरल मेडिसिन. अब इसका ज़्यादा एफिकेसी यूज नहीं है, जबकि ये ओरल दवा है, यानी कि टैबलेट के रूप में खाई जाती है. इंडियन कंपनी ने लॉन्च की है, कुछ लोग अभी कर ले रहे हैं. टोक्लिजुमैब इज एक्सपेंसिव मेडिसिन, 2 डोज दी जाती है. उनको दी जाती है जिनको कोई दवा फायदा ना करे, उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाए और हम लोग को वेंटिलेटर की जरूरत लग रहा है कि वेंटिलेटर जरूरत ना पड़ जाए, उसमें ये दवा देते हैं. कोल्चिसिन के बारे में डिटेल नहीं है. नेल नाइट्रिक ऑक्साइड इज द वन थिंग विच कैन हेल्प इन सम पेशेंट्स, स्पेशली दोज हु आर ऑन वेंटिलेटर, वेरी सिक पेशेंट. अब शुरुआत में क्या करें? अगर जो पेशेंट को अगर कोविड हो गया या नहीं हुआ, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट की बात करते हैं. मैं सारे पेशेंट को कहता हूँ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन 400 मिलीग्राम वन डे एंड फॉलोड बाय 400 मिलीग्राम OD फॉर 4 days. विटामिन सी का काफी ज्यादा रोल है. बट व्हाट इज विटामिन सी? व्हाई इट इज यूजफुल? विटामिन सी इफ टेकन इन एटलीस्ट 5 ग्राम पर डे, एक स्टडी हुई है, यानी कि 500 मिलीग्राम टैबलेट एक रोज खा रहे हैं, एक दिन भूल गए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी. तो दैट इज व्हाई व्हेन आई प्रिस्क्राइब विटामिन सी 2 tablets thrice daily, that will help you to increase your immunity. Similarly, zinc also improve the immunity. तो इस तरह की दवाइयाँ आप लेते रहिए और अगर सैचुरेशन मेंटेन करिए, अपना देखते रहिए. कमिंग बैक टू माय लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, मास्क. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मास्क का चलन शुरू हुआ मार्च में के एंड में और हम लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया. काफ़ी डिसीजन हुआ, N95 मास्क पहने कि 3 ply मास्क पहने, इसका साइज क्या है. 26 दिस इज माई 26 मार्च. आपको याद होगा लॉकडाउन वॉज स्टार्टेड ऑन 24 मार्च बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. 26 मार्च को आई वॉज ऑन टेलीविजन TV9 भारतवर्ष. लॉकडाउन चल रहा था, उसमें ये लोगों ने डिस्कस किया कि मास्क, मैंने उस समय कहा
कि सबको मास्क पहनना चाहिए। तब ये था कि मास्क उन्हीं को पहनना है जो हेल्थ केयर में, यानी कि अस्पताल के अंदर मास्क पहनिए। अगर बाहर जाइए, मदर डेयरी में जाइए, सब्जी खरीदने जाइए, लॉकडाउन के बावजूद भी आपको पास मिल जाता है तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है। तो आई रेज दिस पॉइंट कि अगर आप मास्क ना पहन के कम से कम अंगोछा पहने। देन देयर वाज अ मार्च 29 अगेन आई वाज कॉल्ड फॉर टेलीविजन बिकॉज उस समय एक प्रॉब्लम हुई थी दिल्ली में, आनंद विहार बस टर्मिनल पे, शायद आपको याद होगा, लॉट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स लॉकडाउन के बावजूद दे स्टार्टेड कलेक्टिंग एंड दे वर कलेक्टेड। उस समय भी एक डिस्कशन हुआ कि लॉकडाउन को फजीयत हो गई, व्हाट इज लॉकडाउन, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की क्या, यहाँ तो भीड़ लगी हुई है, यू कैन सी भीड़ लगी हुई है। उस समय मैंने एक वर्ड यूज किया, मैंने कहा बेचारे गरीब लोग हैं, मास्क तो आप दे नहीं पाओगे, पुलिस लाठीचार्ज तो करेगी नहीं। I said, I cannot show you that this is a video actually, that's not that lack of time. I said, please request the police to tell them to cover their face with the angocha. Angocha मतलब जो हम लोग पहनते हैं। And I was very happy to see that after 5-10 days, first week of April, even प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया था, उसमें उन्होंने गमछा पहन के आए थे कि face covering then became a law. This is what I want to say, covering the face all the time, everywhere, not only, अब अनलॉकडाउन हो गया जिसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पीपल आर नॉट यूजिंग फेस। मैं देखता हूँ किसी का फेस मास्क यहाँ लगा होता है, किसी का यहाँ लगा होता है, किसी का यहाँ टंगा होता है, किसी, यानी कि you have to cover your face if you have to really prevent yourself. Wearing mask at home can also limit spread. कैसे? जैसे मैं हूँ, अगर मैं घर में मास्क पहन के रहूँगा तो even if I am mildly infected, I will not infect others. This is what the study says. अब वैक्सीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बातें आई, 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी, टेलीविजन वालों ने दिखाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा शायद जून में या जुलाई में एक लेटर आया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से, द लेटर व्हिच वाज शॉट फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू द भारत बायोटेक कंपनी व्हिच इज कोलैबोरेटिंग विद आईसीएमआर टू डेवलप वैक्सीन, प्लीज गेट द वैक्सीन डन बाय। उन्होंने एक लेटर दिया था, सिंपल लेटर था कि आप कोशिश करिए 15 अगस्त तक ले आइए। अब उसको मीडिया ने उसको मैनिपुलेट कर दिया, 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी समय मैंने टेलीविजन पर कई बाइट्स दिए, मैंने कहा कि 15 अगस्त तक आना मुश्किल है। वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च। अब क्या रिसर्च होती है मैं आपको ये बताऊंगा, थोड़ा सा इसको एनलार्ज करूंगा कि व्हाट इज एक्चुअली वैक्सीन, ये बताना बहुत जरूरी है। 5-10 मिनट में 5 मिनट लूंगा कि वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन इज, व्हाट इज वैक्सीन? व्हेन यू डेवलप अ वैक्सीन तो सब देयर आर 4 phases. फर्स्ट फेज इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन विट्रो, यानी कि आपने पैट्री डिश में देखा कि वो वायरस के अगेंस्ट काम कर रहा है कोई वैक्सीन। दूसरा होता है एनिमल्स, तीसरा होता है क्लिनिकल ट्रायल। और क्लिनिकल ट्रायल में 3 तरह के होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल होते हैं फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अब फेज 1 में क्या होता है, करीब 25 से 30 लोगों को टेस्ट किया जाता है कि इसकी एफिकेसी और कोई साइड इफेक्ट ना हो। फेज 2 में होता है 100 से लेकर 1000 के बीच में। और जो फेज 3 होता है वो होता है कम से कम 25 से 30 हजार लोगों में टेस्ट होना चाहिए बिफोर यू थिंक दैट इट इज सेफ, बिकॉज सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट। आपने वैक्सीन लगाई, आपको कोरोना हो गया, कोविड हो गया, तो व्हाट इज द फन? इट इज सो डेंजरस। तो अभी जो लेटेस्ट है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा करीब 3 महीने, करीब 15 दिन पुराना डायग्राम है कोविड बायो। अब 150 वैक्सीन वर्ल्ड में टेस्टिंग हो रही है, मोर देन 150 वैक्सीन आर बीइंग टेस्टेड वर्ल्ड वाइड। अभी रशिया ने एक फ्लटर किया, क्या फ्लटर किया? 12 अगस्त को वैक्सीन आ रही है, दैट वाज समथिंग लाइक 8 अगस्त। आई गेव ए बाइट टू द टेलीविजन कि 12 अगस्त को हम वैक्सीन ले आ रहे हैं। एक्चुअली क्या था, पुतिन साहब ने बड़ा मजाक किया, उन्होंने कहा 12 अगस्त को एक्चुअली फेज 3 ट्रायल शुरू हो रहा था, यानी कि फेज 2 ट्रायल कंप्लीट कर चुके थे और फेज 3 शुरू होने वाला था। दैट वाज अगेन ए ट्रायल, नॉट फॉर एवरीबॉडी इन द मार्केट। लेकिन लोगों ने कहा 12 अगस्त को वैक्सीन आ रही है, खुश हो रहे हैं। हमारे पास फोन आने शुरू हुए, किस नाम से आएगी डॉक्टर साहब, कितने की आएगी, कितने बाजार में मिलेगी, रूस आके ले आए क्या, आप रशिया में कोई कॉन्टैक्ट आपके आवाज है तो मंगवा दीजिए मुझे। तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ ए आई मीन एंजाइटी और एंग्शियसनेस। खुशी से लोग खुश हो रहे थे। अब मैं आपको इस ट्रैकर के थ्रू दिखाना चाहता हूं, चाइना, अमेरिका, यूके, इंडिया यहाँ पे आ रहा है। इंडिया में 2 वैक्सीन बन रही है, इसको एक तो जाइडस कैडिला बना रहा है, दूसरा भारत बायोटेक विद आईसीएमआर, वो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में। अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम में बड़ा कर देता हूं इसको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आई वांट टू शो यू। देखिए मैंने बताया पहला रेंज में होता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, यानी कि चाइना की 2 वैक्सीन है जो कि कैंसिनो और सिनोवैक, जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच गई है, यानी कि ये ब्लू वाला फेज 3 है। मैंने समझाया था फेज 3 में कम से कम 20 से 25 हजार लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। कमिंग ऑन टू द मॉडर्ना वैक्सीन, ये भी आगे फेज 3 में आ गई है, जो स्पीड में चल रहे हैं जो आगे।
यूके की जो है सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन है इंपीरियल कॉलेज की, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, जो कि फेज 3 में चल रही है। ये हमारी एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ और हमारी जो यूनिवर्सिटी है पुणे में, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये दिस इज थर्ड वैक्सीन इंडिया। इंडिया की 2 वैक्सीन है, बेसिकली ओरिजिनल वैक्सीन 2 ही है और थर्ड वैक्सीन ये जो कंपनी इसके साथ कर रहे हैं। अभी इंडिया की ये पुराना है, अब इंडिया फेज 2 ट्रायल में चल रहा है। यानी कि अगर हम पूरी कोशिश भी कर ले, जान भी लगा दें, तो बिफोर जनवरी नेक्स्ट ईयर पब्लिक के लिए वैक्सीन आना मुश्किल है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, जब वैक्सीन आ जाएगी 1 बिलियन आदमी को कैसे वैक्सीनेट करेंगे आप? वो अलग बात है। दैट इज आर्टिकल विच वाज वेरी कैची टू मी। ये कल का आर्टिकल है कि जब वैक्सीन आ जाएगी, हाउ विल यू वैक्सीनेट 1 बिलियन पीपल? डज एवरीबडी रिक्वायर वैक्सीनेशन? आंसर इज यस। एंड वी आर 1.3 बिलियन, नॉट 1 बिलियन, वी आर 1.3 बिलियन। किस किस को लगेगी? मोर देन 60 ईयर्स को लगेगी, 70 साल के ऊपर को लगेगी, बच्चों को लगेगी, नहीं लगेगी? ऑल दिस क्वेश्चन आर येट टू बी आंसर्ड, बट नॉट बिफोर द एंड ऑफ ईयर विल हैव वैक्सीन। यानी तब तक क्या करना है? तब तक प्रिवेंशन करना है। अब एक बीसीजी वैक्सीन के बारे में आया, एक स्टडी आई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग बीसीजी वैक्सीन लगा के चुके हैं उनको बूस्टर वैक्सीन अगर लगा दी जाए, तो एक स्टडी आई तो उसमें कोरोना होने के चांसेस कम है। इसको देखते हुए मैंने भी अपने लगवा ली। आई एम ऑल्सो आई रिसीव वन बीसीजी बूस्टर अगेंस्ट माई वाइफ विश विद द डॉक्टर। उन्होंने कहा क्या जरूरत है? मैंने कहा कोई कुछ तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आई गॉट माई सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी शुड हैव इट, वी हैव टू डू अ लार्जर ट्रायल, बट बीसीजी वैक्सीन जो कि बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है, हमारे यहाँ बूस्टर वैक्सीन लग जाती है। तो ये एक स्टडी आई है जिसमें दिखाया गया है कि अगर बीसीजी वैक्सीन जिनको लगी हुई है और जिनको बूस्टर वैक्सीन दी गई है उनसे फायदा है। अब ये आउटरीच प्लान, ये सब बात की बातें हैं। अब आई विल स्किप फ्यू ऑफ द स्लाइड्स एंड कम टू द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ऐप बहुत जोरदार तरीके से मिनिस्ट्री ने ऐप बनाया। व्हाट इज दिस ऐप? अभी पता नहीं सबके पास डाउनलोड है कि नहीं है। करीब आउट ऑफ 130 करोड़ पीपल, जो थोड़े दिन पहले कहता था, करीब 20 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, ज़्यादा लोग नहीं किया है। इस ऐप से क्या पता लगता है? इस ऐप से ये पता लगता है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में अगर ये ऐप है तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप देखते रहते हो प्रोटेक्शन। अगर आप किसी कोविड पेशेंट के आसपास गुजरे और वो कोविड पेशेंट पॉजिटिव निकला RT-PCR से, जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर हो गया, तो उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो वो आसपास के 14 दिन के अंदर जितने भी लोग हैं उनको आएगा मैसेज कि यू हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट एंड देयरफॉर बी केयरफुल। इसका मतलब नहीं कि आपको हो गया है, आपको एक बताता है कि यू आर एट मॉडरेट रिस्क, यू आर एट रिस्क टू डेवलप दिस इन्फेक्शन। तो आप प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा पानी पीजिए, विटामिन C खाइए, डॉक्टर से मिल लीजिए, और अगर फीवर आ जाए तो आप टेस्ट करा लीजिए। दिस इज ओनली थिंग, दिस इज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। दिस हेल्प, बट दिस इज नॉट हेल्पिंग दैट मच विच वी एक्सपेक्टेड। अब अमेरिका में स्टडी चली, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताना चाहूँगा। व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी इज एक्चुअली द एंटीबॉडीज फ्रॉम द पेशेंट हु हैज रिकवर्ड। जो लोग रिकवर कर गए हैं उनकी एंटीबॉडीज निकाल के देखते हैं और उसको पेशेंट को चला देते हैं। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से अभी भी ये इन्वेस्टिगेशनल टूल है, यानी कि कुछ 2 तरह के पेशेंट होते हैं, एक को देते हैं हम, तो कोहॉर्ट में डालते हैं, इनको रेंडमाइज करते हैं, किसी को दे, लेकिन आजकल हम लोग दे रहे हैं। एफिकेसी बहुत बढ़िया पता नहीं लगी। उसका रीजन शायद ये है कि प्लाज्मा थेरेपी अभी भी हम उनको देते हैं जो बहुत सिक हो जाते हैं। मेरी पर्सनल थॉट है, अगर हम मॉडरेटली सिक होते हैं जहाँ हल्की ऑक्सीजन जरूरत पड़े, उसको प्लाज्मा दे दें अभी, लेकिन वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ द कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो मेरी सोच है, वाई दिस इज नॉट दैट मच इफेक्टिव एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम लोग देते कब हैं? जब साइटोकाइन स्टॉर्म होने वाला होता है, यानी कि पेशेंट के अंदर निमोनिया काफी फैल गया है। अब उस स्टेज पे वो एंटीबॉडी काम नहीं कर पाएगी जितना कि हम पहले दें। वही चीज है जो एंटीबॉडी वैक्सीन देती है। अब बेसिक चीज है, बेसिक हाइपोथेसिस है। वैक्सीन कब दी जाती है? प्रिवेंशन के लिए, उससे भी तो एंटीबॉडी बनती है। और ये प्लाज्मा क्या है? एंटीबॉडी है, किसी और का है लेकिन है कोविड का। तो इसको हम माइल्ड पेशेंट में क्यों ना दें, मॉडरेट पेशेंट में क्यों ना दें? सीवियरली सिक के लिए अभी है। तो दिस इज माई थॉट प्रोसेस विच विल डिस्कस लेटर ऑन। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? बहुत पढ़ा हुआ अखबारों में। जब सारा पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाए और सबको इम्यूनिटी आ जाए तो उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। इसके बेसिस पे सबसे बड़ी गलती करी स्वीडन ने क्या किया? उन्होंने लॉकडाउन किया ही नहीं। उन्होंने कहा हम तो हमारे सारे लोग इम्यूनिटी हो जाएंगे, लेकिन फिर जब देखा कि बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, ये तब पॉसिबल है जब पेशेंट की मोर्टेलिटी ज़्यादा ना हो। मोर्टेलिटी मतलब जनसंख्या जिसकी मृत्यु की संभावना, यानी सीरियस होने की संभावना कम ज़्यादा हो, तब तो कर सकते हैं। अदरवाइज हर्ड इम्यूनिटी इज एक्चुअली अ शैम एंड वी शुड नॉट गो अहेड फॉर इट। कमिंग ऑन टू द हाउ इंडिया इज प्रिपेयरिंग वेंटिलेटर ट्रीटमेंट। आजकल ये आ गया, मैंने कई वेबिनार किया अमेरिका के साथ में,
हम लोग कोशिश करते हैं कि वेंटिलेटर पे पेशेंट को, दो तरह के वेंटिलेटर होते हैं, एक होता है बाईपैप, एक होता है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, यानी कि प्रेशर मास्क बट ट्यूब नहीं डाला, दिस इज नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। जब ट्यूब डालने की जरूरत पड़ जाए तो पेशेंट को हमें सुलाना पड़ता है, फेंटेनिल नाम की दवा होती है जिससे सुलाते हैं, क्योंकि अदरवाइज ट्यूब निकाल देगा। वेंटिलेटर ट्रीटमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो द स्टडीज हैव शोन, जो उस स्टेज तक पहुंच गए कि जिसको इन्वेसिव वेंटिलेटर देना पड़ गया, लेकिन द पेशेंट हैज बिकम सो सिक that the saturation is not maintained even by non-invasive ventilator. If the patient is COVID, the chance of success is not much, यानी the patient mortality is very high. Early stage में वेंटिलेटर नहीं लगाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं पेशेंट जगा रहे, let the patient be awake, और वो हम लोग करते रहते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स आर द वर्स्ट अफेक्टेड, जैसे मैंने बताया, आपको डेटा दिखाया था, और चाइना का रोल है, इस पर डिस्कशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। वेदर चाइना इज इन्वॉल्व, वेदर इट इज बायोमैन ह्यूमन मेड वायरस or it is a natural virus, we don't know, but the way it is affecting the patient population, we feel that something is fishy. COVID and heart, ये लास्ट स्लाइड है, मैं दिखाना चाहता हूँ। जिस पेशेंट को हार्ट के पेशेंट है, ये ओवरऑल डेटा आया था चाइना से, ये फरवरी का डेटा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है उनको 7.3% रिस्क ऑफ डेथ है, जो पेशेंट मोर देन 80 ईयर्स है उनको 15% रिस्क ऑफ डेथ है। आई हैव लॉस्ट मेनी ऑफ द पेशेंट हु आर नोन टू मी at this stage of more than 80, they are very well known to us, और चले गए। Hypertension 6% है, overall mortality something like 3%, 2.3% है। This is data which was published very early, 24 February। लेकिन अभी भी mortality, हमारा aim है, our aim is to bring mortality less than 1%, this is our aim। So अब this is my last slide, and then I will just say thanks, and then we'll discuss a little more few questions। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, COVID-19 is a dangerous disease. If you take full precautions, then you will be saved till the vaccine is coming. अब वैक्सीन आएगी, कब तक आएगी, कितने दिन काम करेगी, whether it will be 3 monthly or a 6 monthly or a yearly vaccine, we don't know. Why this virus is not disappearing? अभी ज़्यादातर हमने जब अप्रैल में बात कर रहे थे, हम लोग सोचे थे इतना हीट आएगी कि 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, इंडिया में वायरस चला जाएगा। I gave so many interviews, but it is not happening. And despite heat, निकल गई गर्मी, निकल गई बरसात, आ गई मानसून, निकल गया, अब जाड़ा आने वाला है। अब तो सितंबर में है, तो we are going to October and then Diwali. So this virus is not going. And एक और चिंता वाली बात है, सेकेंड वेव। कुछ पेशेंट को सेकेंड वेव भी आया है, मैं कुछ स्लाइड आपको दिखा नहीं पाया कि सेकेंड वेव इज पॉसिबल और नॉट। तो what I mean to say, finally we have to depend upon prevention, which is sanitization, यानी कि शुड बी ए नॉर्म, यानी कि हाथ तो आपको आदत पड़ती रहनी चाहिए कि आप कस के सैनिटाइज करते रहिए। सेकेंडली, ऑलवेज वेयर द मास्क व्हेनेवर यू आर देयर, टेक प्रिकॉशनरी मेडिसिन्स लाइक आई ऑलवेज गिव, एंड आई एम टेकिंग माई सेल्फ एटलीस्ट 2 टैबलेट थ्राइस डेली और ट्वाइस डेली विटामिन सी, देन यू शुड टेक ए गुड विटामिन। और कुछ मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, कुछ हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं ले रहा हूँ, च्यवनप्राश, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी बॉडी के अंदर, तो वायरस आएगा भी, निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर इम्यूनिटी क्यों एल्डरली पॉपुलेशन में, वाई इन एल्डरली पॉपुलेशन वी हैव मोर डेथ्स, बिकॉज उनको डायबिटीज हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशन होती है, स्टेंट लगा हुआ है, बाईपास हो चुका है, और जैसे मैंने बताया कि आपको कि इस बीमारी में ब्लड गाढ़ा हो जाता है, टू बी से इज प्रोथ्रोम्बोटिक। दिस वायरस नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द लंग बट ऑल्सो पूरी बॉडी के अंदर, इसलिए हम D-dimer टेस्टिंग करते हैं। नाउ वी हैव लर्नड अ लॉट, दैट मीन्स वी आर डूइंग D-dimer टेस्ट फॉर एवरी पेशेंट हु इज एडमिटेड। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, टेक प्रिकॉशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मैं तो कहूँगा खाना चाहिए, अब आइवरमेक्टिन दी जा रही है, तो ये बता रहा था मेडिसिन जो अवेलेबल है, इसमें हम लोग को करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अगर 1% से कम मोर्टेलिटी आ जाएगी, हमें उस दिन का इंतजार है। वी आर वेटिंग फॉर द डे व्हेन एक्चुअली द मोर्टेलिटी विल बी लेस देन 1% एंड वी विल बी एबल टू सेव आवर पॉपुलेशन, एंड व्हेन द टेस्टिंग विल बी मोर देन व्हाट इज एक्चुअली देयर एट द मोमेंट, ऑल्दो वी आर टेस्टिंग नाउ अ लॉट। और हम उस दिन का इंतजार है जब वैक्सीन आ जाएगी, और लेकिन वैक्सीन कितने दिन चलेगी, कितने दिन है, क्या वायरस अपने आप जाएगा कि नहीं जाएगा, नोबडी नोस। 8 महीने हो चुके हैं, इनफैक्ट 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है। एक बच्चा डिलीवरी, अगर किसी ने डिलीवरी शुरू हो नवंबर में, तो इसमें सितंबर तक आई थिंक चाइल्ड विल बी बोर्न, एंड वी आर स्टिल फेसिंग द पैंडेमिक डिस्पाइट
लॉट ऑफ रिसोर्सेज, पूरा वर्ल्ड में इतना पैसा डाला गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, जो कि आपने बिल गेट साहब ने इतना पैसा दिया है। आवर गवर्नमेंट ने पीएम केयर फंड बनाया। वी हैव आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन सो मच फंड फॉर द रिसर्च, फॉर ट्रीटमेंट, फॉर आइवरमेक्टिन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स इन द कोविड वार्ड बनाया गया, कोविड में बनाया गया। शुरू में कहा था एवरीबडी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, लेकर ऑन होम क्वारंटाइन की बात आई। तो थिंग्स आर चेंजिंग एवरी डे। बट इवन विद द फर्स्ट सिम्टम, आई टेल यू, अगर सिम्टम आ गए हैं और आपके घर में मेडिकल केयर नहीं है, बेटर टू हॉस्पिटलाइज, डोंट डिले। आई हैव अनदर पर्सन एग्जाम्पल, यस, इन लखनऊ वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, डिस्टेंट रिलेटिव, का 10-12 दिन तक होम पे रखे रहे। सो फाइनली वी हैव टू रियली हॉस्पिटलाइज हिम। तो हॉस्पिटलाइजेशन से डरे मत। साथ साथ जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको भी आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमको लगेगा कि हार्ट अटैक पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए, कोविड तो अलग बात है। वी हैव लॉस्ट मेनी पेशेंट्स हु हैव नॉट कम टू हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल और भी जो बड़े हॉस्पिटल है, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे अच्छी जगह है, सुविधाएं है, वो कोविड की अलग से बने हुआ है। बट ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कंप्लीट मास्क, अगर डबल मास्क पहन के जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। वैसे नॉन साइंटिफिक बात मैं करूँगा, वो करना चाहिए, लेकिन जब आपको डर लगता है तो आप 2 मास्क भी, हम तो एक हमारे कुछ लोग पहने हैं, एक ये पहन लिया, एक 3 प्लाई मास्क भी लगा लिया कि चलो किसी तरह से बने, लेकिन हमको उतारना पड़ता है। तो आपको फाइनली वी हैव टू डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, सोशल डिस्टेंसिंग विच इज इम्पॉसिबल। अब देखिए मेरे बगल में 2 लोग बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इज गुड व्हेन यू आर गोइंग आउट। 2 मीटर की दूरी बना के रखिए, 2 गज की दूरी अपने प्रधानमंत्री जी ने बोला, लेकिन इट इज नॉट दैट प्रैक्टिकल। बट फेस मास्क इज प्रैक्टिकल और कवरिंग द फेस इज प्रैक्टिकल। नाक के ऊपर रखें। और तीसरा है सोशल SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। तो आपके घर में भी हर जगह सैनिटाइज करिए। अखबार आता है उसको एक बार स्प्रे से सैनिटाइज कर लीजिए, या तो अखबार बनाना हमारे तो आ रहा है तो आई ट्राई टू सैनिटाइज इट। और घर के अंदर और इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते रहिए। दिस इज माई फाइनल थिंग, प्लीज कीप टेकिंग विटामिन C, CoQ एंजाइम जो मैं लिखता हूँ, आई डोंट नो उसका क्या है रोल है। च्यवनप्राश लोग खा रहे हैं, अश्वगंधा का रोल है। माई फादर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शो द एंटी कैंसर एक्टिविटी जिनके दिखाया ऑफ अश्वगंधा एंड ऑल्सो इम्यून बूस्टर 1986 दैट वाज पेपर पब्लिश्ड। आजकल अश्वगंधा लोग बना रहे हैं, लेकिन मैं फादर डॉक्टर आई एम प्राउड टू से दैट ही वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन 1986 वेयर अश्वगंधा वाज प्रूवन टू बी हैविंग इम्यून बूस्टर एंड एंटी कैंसरस एक्टिविटी। पेपर इज बीइंग साइटेड एवरी ईयर। अभी 2020 में उनका नाम गुप्ता et al करके आता है। So thank you very much, Library, for giving me this opportunity. I would be happy to interact with few people. We have another 5-10 minutes. I can stay with you and we can interact. If any questions coming from your side or anybody else's side, I'll be happy to interact. Thank you. Yeah, thank you so much, Dr. Vivek Gupta. It was an insightful session, sir, and very informative. So there is no question as such, sir, but the doctors have liked the session. And Dr. Ramesh Gulai, thank you. I said thank you for this session, sir. And there are no questions as such. They have liked the session. Okay, तो क्वेश्चन अभी नहीं है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे 80,000 रोज आ रहे हैं, तो हमारे जैसे मेरे बेटा है, एक फोबिया हो गया है, उस फोबिया को ना रखें। लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग फोबिया। डॉक्टर साहब क्या करें क्या ना करें, कैसे होगा, टेलीविजन बता रहा है बातें। अब तो अवॉइड फोबिया, टेक प्रिकॉशंस बट डोंट पैनिक। डॉक्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पी फॉर पैनिक, पी फॉर प्रिकॉशन। उन्होंने कहा प्रिकॉशन लेके पैनिक ना करें। बीमारी का इलाज आएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास ऐसे रामबाण दवा होगी। आई एम वेरी होपफुल, गॉड इज वेरी काइंड। ऐसी दवा आएगी। हमारे फादर ने भी एक दवा जो जा रही है एथिकल कमेटी के थ्रू इन द रेंडमाइज्ड ट्रायल, हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है कोई और आ जाए, कि ऐसी दवा आएगी जो कि आपने दवा खाई, कोरोना हो गया, चाहे इंजेक्टेबल हो चाहे दवा खाई, और घर बैठे आपका इलाज हो गया। जैसे कि हमारे डायबिटीज़ की दवा है, डायबिटीज़ में क्या है, ब्लड शुगर बढ़ती है, हम कम कर देते हैं। तो अगर ऐसी दवा आ जाएगी तो मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी, रिस्क ऑफ लाइफ कम हो जाएगा, वेंटिलेटर तक पहुंचने की सुविधा जरूरत नहीं पड़ेगी, कोविड वार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में तो ये था कि कोई चोरी ना हो और सबका पेट भरा हो। हम उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं, राम राज्य का मतलब ये भी होना चाहिए कि खास करके इस बीमारी का ऐसा इलाज आ जाए इवन वैक्सीन की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन ऑफ कोर्स वैक्सीन जब वायरस चीज़ है, वैक्सीन तो आनी ही पड़ेगी, और वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन आएगी। कुछ क्वेश्चन ये भी हो रहे थे कि अगर हमारे वैक्सीन, जैसे कि एड्स की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन ना आए? बोरिस जॉनसन ने सबसे पहले क्वेश्चन रेज किया था। बोरिस जॉनसन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हु गॉट इन्फेक्टेड, कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे नॉट हैव वैक्सीन। अब पीपल गॉट वरीड, लेकिन जब हम फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंच चुके हैं तो वैक्सीन तो आएगी ही।
कितने दिन में आएगी अलग बात है। और रशिया इज डूइंग शॉर्टकट, उन्होंने 1200 लोगों को फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में लिया है। अब केवल 1200 लोगों को लगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अगर इनकी आ भी गई मुझे डर लगेगा। हमने कहा आपने पूरा ट्रायल ही नहीं किया, इट हैज टू बी इन thousands means at least 15, 10, 15, 20,000 in the phase 3 clinical trial. Then I'll be happy to prescribe to my patient or to take it for myself. Thank you very much, Library. I'm very happy to be part of you. If there is another opportunity, I'll be talking because I have learned a lot. I am a cardiologist. I do intervention. I do angioplasty. I've done a lot of angioplasty. I've done more than 5,000, 10,000 cases till now. But I have special interest in this disease, and that's why I have done 16 webinars in a row with American, Italian, German, and other cardiologists of the world, learning day by day कि क्या नया है, क्या और कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा जाए, कैसे खुद बचा जाए और कैसे बचाया जाए. All these things are there. Thank you very much, Library. It was fantastic to part with you, and we'll keep again after 1 month. If you are interested, we can do another webinar later on. Thank you very much. Yeah, thank you so much, sir. I thank you on behalf of all the doctors and audience who attended the session today, and we look forward to host you again in future. Thank you so much for your time, sir. Namaskar. तो आपने सुना होगा हमारे दोस्त इस समय बैठे हुए हैं, जिस फेसबुक लाइव भी चल रहा है, डॉक्टर अनुपम, बेसिकली फ्रॉम अजमेर. सो मैंने इनको होल्ड कर लिया कि हमने आप वेबिनार सुनिए फिर डिस्कशन करेंगे. इट वाज एक्चुअली अ ग्रेट लर्निंग. एवरी टाइम यू स्पीक यू लर्न बिकॉज यू हैव कमिंग थॉट्स कमिंग अगेन एंड अगेन. तो कोविड के लिए डरे मत, प्रिवेंशन लेते रहिए. और नेक्स्ट हम अपना फेसबुक लाइव में और कुछ बताएंगे. टिल द टाइम टेक केयर, एंजॉय लाइफ. 2-3 बातें हैं जो अभी दिल में है वो बताना चाहता हूँ. स्कूल अभी नहीं खुलना चाहिए. चिल्ड्रन कैन नॉट वियर द मास्क. बच्चे हैं बेचारे स्कूल के. अब नीट एग्जाम के बारे में होगा कि नहीं होगा बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो अंडर पैनिक के क्या करें क्या नहीं करें. लेकिन बच्चों के स्कूल तो कम से कम नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हम लोग काफ़ी लोगों को विल मेकिंग दम लॉट ऑफ रिस्क. बिकॉज बच्चे स्कूल जाएंगे, वापस आएंगे, इन्फेक्शन लेके आएंगे और घर में कब तक आप बंद रहेंगे एक कमरे के अंदर. इट्स नॉट पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ फेसबुक लाइव. थैंक यू वेरी मच. इसका लिंक शेयर